Malati and I am Gurjot. Welcome to our school podcast Talk to Me episode 6. Today is our great pleasure to have with us Mrs. Krishna Rawat Dobar, who is a journalist and a radio jockey. Good morning, esteemed guest, ma'am. For the benefit of the young audience, could you share what may trade on the benefit of the chosen career path? As a chosen career path, I must say that communication always help you to build your confidence, your communication skills. Means you never hesitate to ask anyone, to talk to with anyone. You can easily talk with anyone, asking any persons about anything. So communication is not only as a career, it also build up your personality development, build up confidence in yourself, and always encourage lights inside you to know about what is around us. Thank you, ma'am, for your valuable feedback on the career path. It gave us a broader perspective. Ma'am, since we can't see your face on the radio, how do you use your voice to make listeners feel happy or excited? It's a very good question because we all know that the radio is only way to communication through a voice. No one can hear, no one can see us, and no one can read. Okay, it's only a one-way communication, or sometimes it's a two-way communications. In a radio, we have to speak, and we always imagine that we talk with our audience. We make our words like we interactions with each others. It's never feel bored. If a radio jockey can say something or making program in any topics, so it should be like this. You can imagination. If I speak something, so I think my listener can imagine or feel the program, the words I speak on a radio. And it's very different things because every medium of a communication, or we can say that in a journalism, there is a different mode of a media lines. So radio is one of the medium to communicate, and in radio it's very different from the other medium because in this we only know the our audience is for the hearing, and in the hearing audience we always know that what age group of the audience, and it's a male or a female, it's a working or non-working, it's students. So we always prepare program for the audience, for their requirements, for their needs. And always sometimes we make programs on the basis of some topics, some current affairs, and some musical programs which can entertain our audience. Okay, now let's move forward. What is one thing about your job that is totally different from what we see on TV or hear on the apps? Okay, it's totally different because we always know that doing mass communication and journalism, it simply means we came in a big TV screen. Everybody know and everybody like to be on a TV. I hope many of you see news channels and watching an anchor broadcasting their program, their news. So always think about ki, what a life. They have a good makeup, they have a good dress up, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा यही लगे कि वो जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा है. बहुत स्ट्रगल होता है एक जर्नलिज्म के पीछे. आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए. You always know about what is the issue, what is the event, and you always do your homework before going anywhere, before asking about anything, because it's not only a one thing. क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं जर्नलिज्म की, तो हमारे फील्ड में हम एक छोटे शहर में रहते हैं. तो जब छोटे शहर में रहते हैं तो वहां पे आपको एक सिर्फ स्पेसिफिकली बीट नहीं मिलती. जर्नलिज्म में डिफरेंट डिफरेंट बीट्स होती हैं. क्राइम, पॉलिटिकल्स, सेलिब्रिटीज, मूवीज, अलग अलग तरह की बीट्स होती हैं. फैशन की अलग होती है, वाइल्ड लाइफ की अलग होती है. लेकिन व्हेन वी लिव इन अ स्मॉल सिटी, वी हैव टू वॉच एवरीथिंग. We have to work on our wildlife, we have to work on our political issues, we have to work on our crime. So ये बहुत अलग चीज हो जाती है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता कि कितनी दौड़ भाग होती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और कितना कुछ हमें, जैसे बहुत वीआईपीज मूवमेंट्स होते हैं हमारे शहर में. एज वी ऑल नो दैट ऋषिकेश इज इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा, एंड मैनी इंटरनेशनल और नेशनल विजिटर्स विजिट हियर.
for Ganga Aarti and for Ma Ganga's blessings and everything. They come here. So it's not easy for us to interact with them easily. Sometimes we have to wait for them an hour and hour, and we have no food, no water. So this is the struggle behind just for a 1-2 minute interview. Okay. Thank you for your answer for journalism. Ma'am, if you could interview any person in history for your show, who would it be and why? Uh, Actually, I would like to share one interesting thing. I interviewed Mr. APJ Abdul Kalam. We all know that he is no more, and he is a missile man of India. And every kid always read his books and inspired from him. So once of a time, he came in a Rishikesh into Rishikesh College, Rishikesh Seema Dental College for their convocation, and that's my biggest opportunity to meet him, to interview him, and he is very polite, and he is very humble, and he is very good in speaking, to communicate with them, because I know very well that being a journalist, it's easy for us to interact with such VVIPs because a common person can't reach them, and we always have a good मीन्स वी कैन से दैट कि हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम किसी भी वीवीआईपी से इजीली अपने जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे पुट अप कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं. तो ये मेरा रहा है. और दूसरा, बहुत बड़े बड़े ऑथर्स रहे हैं. वन ऑफ द नेम इज नयनतारा सहगल. आई होप शी इज, आई थिंक सो शी इज नो मोर. शी इज द नातिन रही है वो जवाहरलाल नेहरू की. वो देहरादून में रहती थी, तो उनका भी मैंने इंटरव्यू करा है, और बहुत अच्छी ऑथर हैं वो भी रही थी वो. तो उनका इंटरव्यू करने का काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. और आपके जो हम सभी जानते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल होता है ऋषिकेश में. तो गुरुमुख कौर और खालसा जो न्यूयॉर्क में हॉलीवुड के एक्टर्स को योगा सिखाते हैं, तो उन लोगों का इंटरव्यू करना भी हमारे लिए मतलब बहुत इजीली हो जाता है. उनसे हम पूरी बातचीत करते हैं. तो ये मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हैं, जैसे बॉलीवुड के एक्टर्स आपके शिल्पा शेट्टी हो गई, आपके कैलाश खेर हो गए, आपके शिव मनी हैं, इंटरनेशनल ड्रमर हैं, ए आर रहमान की म्यूजिकल टीम में आते हैं, उनका इंटरव्यू हमने करा है. और आपके टॉलीवुड के फेमस एक्टर रामचरण तेजा, उनका अभी इंटरव्यू हमने करा है. तो ये काफ़ी सारे वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो इजीली लोगों को नहीं मिल पाते, लेकिन वी हैव अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू दैम. Let's move towards the next question. Do you practice thinking before speaking, and how often do you use the button? In a radio station when I'm working, so always think that you are talking to your audience lively. So never think about the mic is a mic. Always think and imagine in your mind the audience in front of you and you are talking to them. So it's very easy and very comfortably. मतलब आप बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग के साथ साथ रेडियो के काम को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि उसमें कभी कभी हम अपने कल्चरल की बातों को करते हैं, हम अपने आसपास के जुड़े हुए समाज की बातों को लेकर के बात करते हैं, हम बच्चों के करियर को लेकर के बातें करते हैं. तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई परेशानी होती है. हमें लगता है कि हम ऑडियंस से सीधे बात कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ जो हमारे लिसनर्स हैं, और बहुत इजीली होता है. ऐसे ही आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जब हम जर्नलिज्म करते हैं और हम लाइव होते हैं, व्हेन वी आर लाइव इन अ टीवी, लाइव ऑन अ टीवी, तो हमारे को क्या लगता है कि हमारे एंकर हमसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं कि जो कैमरा है वो हमारी ऑडियंस है, और हम उस कैमरे को देख के अपने आप वर्ड्स बोलते जाते हैं. इसके लिए हमें सबसे पहले ये होता है कि हमें अपनी चीज़ों के लिए अच्छा एक होमवर्क करना पड़ता है. ऑलवेज नो अबाउट अवर सब्जेक्ट. Let's go ahead. If you had to describe your job in some Gen Alpha slangs, which ones would they be? Which ones would they be? Gen Alpha. What we say? Okay, because I'm a millennium, so must
Might take some time to think me about it. Um, because today's everyone is a blogger or everyone is a content creator. Everyone know how to edit, how to make any videos, how to make any film or a documentaries, because everyone is very familiar to the technology. As you all soon very known for friendly with the technology, friendly with this equipment we call the mobile phone. So for them it must be they all are called the bloggers or something. I don't think so any other word suits for them. Okay, ma'am. Ma'am, what is the best piece of advice you've ever received that we students should hear? Okay, the best advice is this: कि always follow your passion. Okay, we all know about the movie Three Idiots. Yes. You heard about it? Yes. Okay, थ्री इडियट्स. तो उसमें हमेशा वो तीन दोस्त होते हैं, सबको उनकी स्टोरी पता है. तो अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, है ना. और हमेशा हम कुछ सीखने के लिए करते हैं कुछ भी. हमें ऐसा नहीं होता कि किसी मुकाम पे पहुंचना है. ऑलवेज लर्न समथिंग अबाउट, क्योंकि जीवन में हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता ही है. हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजें भी हमें कुछ सिखाती हैं. तो ऑलवेज बी अ गुड लर्नर एंड फॉलो योर पैशन. दैट्स. Ma'am, it was great to have you. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ओके. अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ. जब हम मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ जर्नलिज्म नहीं होता है. इट्स लाइक अ बिग ओशियन. आपको उसमें अलग अलग फील्ड की चीजें देखने को मिलती है, जिसमें आप फोटोग्राफर, आप इवेंट मैनेजर, आप कंटेंट राइटर, अ गुड राइटर, और आप उसमें डॉक्यूमेंट्री मेकर, एडिटर, फिल्म मेकर, और आप इसमें जो जर्नलिज्म में भी अलग अलग काम होता है, जिसमें आपका फ्रंट में अलग होता है, जिसे हम रिपोर्टर कहते हैं, एंकर कहते हैं, कैमरा पर्सन होता है, और उसके बैक साइड अलग काम होता है जिसमें हम कहते हैं डेस्क, जो पूरा आपका एडिटिंग करते हैं, आपके प्रोग्राम बनाते हैं. और आपका एक और फील्ड आता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जिसमें आपका पीआर रिलेशंस जो होते हैं किसी भी कंपनी के, वो मैनेज करने के लिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होता है, जो आपके हर एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आपको देखने को मिलेगा. आइदर इन अ मेडिकल, आइदर इन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस. ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं. और ऐसे ही फोटोग्राफी भी अलग अलग होता है, क्योंकि हम जब बच्चे होते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है. तो फोटोग्राफर में भी आपका फैशन फोटोग्राफी अलग हो गई, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अलग हो गई, लैंडस्केप फोटोग्राफी अलग हो गई, है ना. तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड हो जाते हैं. सिर्फ एक मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म जब हम कर लेते हैं ना, तो सिर्फ एक ये नहीं रहता कि हमें सिर्फ जर्नलिस्ट बनना है. इसमें इतने सारे फील्ड्स हैं. आपको रेडियो जॉकी, है ना, उसमें भी अलग तरीके से काम होता है. ये सब चीजें होती हैं. और एक अच्छा राइटर, अच्छी बुक्स पढ़ो. आप लोग अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो बुक से क्या होता है कि हमारे विचार खुलते हैं, है ना. हम नई नई चीजों को जानते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी सबसे अच्छे जो हमारे हिंदी के साहित्यकार रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद. आप उनकी बुक्स पढ़ना, आप जान सकोगे कि एक रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत कैसा था, और एक अब का भारत का परिवेश कैसा हो चुका है ना. और एक और चीज है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी ये बुक है. उसमें भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके ब्रिटिश रूल तक का, 1946 में ये बुक रिलीज हुई थी, इस तक का आपको पूरा इतिहास पढ़ने को मिलेगा कि कैसे हम इंडस सिविलाइजेशन से कॉलोनियल सिस्टम में आए और नाउ इंडिया अब किस स्थिति में है. बाकी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनकी बुक्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. और एक और चीज है कि आप अपने बड़ों से, घर में आपके एल्डर वन होंगे, दादा दादी, नाना नानी, क्योंकि आपका जो टाइम है ना, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं. एक न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, ज्वाइंट फैमिली से दूर होकर के. तो जब हम बड़ों के साथ बात करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, क्योंकि उनका एक अपना उम्र का तजुर्बा होता है ना.
तो उनसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, अपने कल्चर के बारे में जान सकते हैं, अपने रूट्स के बारे में जान सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। Thank you for your guidance, ma'am. Thank It you. helped us see things more clearly. Okay, thank you so much.